ساتھ بھی ہمارے جو تباہی میں کی ہے متاثرہ دیگر ایک کیمپ بھی لگائیں گے اور اس کیمپ کے سلسلے میں جو ہمارے دیگر علاقوں میں لوگ پہنچائیں گے. جی آپ کا پہلے تہ دل سے شکریہ ادا. بھرپور طریقے سے جو ہے امداد اور مدد جیسے ہمارے چیئرمین بلا آفت آیا ہوا ہے قدر بھی اللہ نہ کرے اس سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی اس جگہ پہ ہوتی ہے. جی عمران شیخ بھائی آپ کا بہت بہت مہربانی شکریہ کیونکہ ہر جگہ پہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہو. غم کی گھڑی ہو یا خوشی کی ماشاءاللہ پاکستان نیوز ہمارے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کا پہلے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ٹائم UC8 میں نمائندگی کر رہا ہوں. اور اس ٹائم جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے جو ہے امداد اور مدد جیسے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے MP ایم این او تمام کہا ہے کہ جہاں جہاں جو متاثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ پہنچ جائیں. اور جتنے MP ایم این اے سے ان کا باقاعدہ تنخواہوں میں سے فنڈ بھی کاٹا گیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس غم کی گھڑی میں پورے پاکستان میں جو متاثر ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اچھا بلوچستان ہو یا سندھ ہو یا کراچی ہو جو پورے پاکستان میں اضافی بارش ہوئی اور بہت ساری جانوں کا بھی نقصان ہوا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ سب کے لیے آپ لوگوں نے اجتماعی دعا کی. یہ ہمارے ہی لوگ تھے. جی بالکل یہ ہمارے لوگ تھے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو کسی رنگ و نسل اور کسی زبان پہ فرقے پہ وہ نہیں رکھتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم دعا ضرور کریں گے کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی تھے چاہے وہ کوئی بھی ہو. پورے پاکستان میں اس ٹائم جو ہے نا آفت آیا ہوا ہے قدرتی آفات ہے. اللہ تعالیٰ ان آفات سے تمام مسلمان بھائیوں کو بچائے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا آپ لوگ مل کے جڑ کے سب مدد بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ساری چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ ہم جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی تمام جگہوں پہ جو بھی اللہ نہ کرے سیلاب زدگان ہو زلزلہ اللہ نہ کرے سب قدرتی جو آفات ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بڑھ چڑھ کر سب سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی اس جگہ پہ ہوتی ہے. جی آج اجتماعی دعا کی گئی UC8 کے اندر سرجانی ٹاؤن میں جس میں چیئرمین صاحب بھی ہمارے موجود ہیں اور دیگر ساتھی بھی ہمارے یہاں ساتھ ہیں. جیسے کوئٹہ و بلوچستان اور انٹیل سندھ کے اندر بارش سے جو تباہی میں کی ہے متاثرین لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی امداد کے لیے چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ ہم انشاءاللہ اپنے علاقوں میں بھی ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ دیگر ایک کیمپ بھی لگائیں گے اور اس کیمپ کے سلسلے میں جو ہمارے دیگر علاقوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں راستے بند ہیں پہنچ نہیں سکتے کوشش کریں گے کہ وہاں تک راشن پہنچائیں. جی اور پاکستان نیوز آپ کو لائیو ایک منظر اس طرح کا دکھا رہے ہیں کہ UC38 میں ہم موجود ہیں. یہاں کے چیئرمین وائس چیئرمین کونسلر سارا پینل موجود ہے. ذمہ داران بھی یہاں کے وارڈ کے ذمہ دار بھی موجود ہیں. سب سے پہلے چاچا غوث سے بات کریں گے. سید علی شاہ شرازی بھی موجود ہیں. اور ان بچوں کے آنکھوں میں کشش دیکھیں پورا گھر ڈوب گیا ان کا پورا گھر ڈوب گیا. اور یہ صرف CM صاحب سے اپیل کریں گے اور یقین کیجئے کہ یہ وہ ساری وہ فیملی ہے. یہ دیکھیں بیٹی ہے یہ ان کے آنکھوں میں کشش دیکھیں یہ پورا ان کا گھر ڈوب گیا ہے اور تباہ و برباد ہو گئے ہیں. اور یہاں پہ UC38 میں موجود ہیں. چاچا غوث سے بات کرتے ہیں. چاچا غوث السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاچا غوث کون سی جگہ ہے؟ ہم UC6 اولڈ UC38 یوسف گوڈ عبدالرحیم گوڈ کے اس پرائمری اسکول میں بیٹھے ہیں. ہمارے اندرونی سندھ کے جو بہن بھائیوں کے گھر ڈوبے ہیں سب کچھ ختم ہوا ہے. ہمیں جب پتہ لگا ہم پہلی فرصت میں ہماری ٹیم یہاں آ کے پہنچی ہے اور ان کو کمروں میں بٹھایا ہے. ہماری اپنی بہنوں کو کمروں میں بٹھایا ہے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے جو ہے نا دکھوں پہ ہم تھوڑی سی مرہم رکھ رہے ہیں. تو ہماری اپیل ہے ہماری گورنمنٹ ہے اور ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے یہ لوگ ہمارے سہارے پہ آئے سندھ گورنمنٹ کے سہارے پہ آئے اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ان کا جو بھی جائز مسئلہ ہے جو ان کی تکلیفیں ہیں ان کو دور کیا جائے. بس ہم یہی کہیں گے اور کچھ بھی نہیں کہیں گے. چاچا غوث یہ کہاں کے ہیں کن کن شہروں سے ہیں؟ دیکھیں یہاں ابھی ہمارے پاس 12 فیملیاں آئی ہیں. کچھ میہڑ کے ہیں کچھ کندھکوڑ کے ہیں کچھ جکم آباد کے ہیں کچھ باڈرے کے ہیں مطلب مختلف شہروں سے آئے ہیں. تو ابھی کافی لوگ پیچھے ہیں گاڑیاں بھر بھر کے آ رہی ہیں وہاں کچھ بھی نہیں بچا ان کا مال مویشی زمینوں میں جو بھی کھیت وغیرہ لگے ہوئے تھے ختم ہو گئے ہیں. اب ان کے پاس وہاں کچھ نہیں بچا تو یہاں شہروں کا رخ کیا ہے ہمارے آسرے پہ سندھ گورنمنٹ کے آسرے پہ. جیسے یہاں ان بچوں کے کم سے کم پیٹ تو بھرا جا سکے. وہاں کھانے کے کچھ نہیں ہے پہننے کا کچھ نہیں ہے. صرف ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں مرجھائی ہوئی ہیں ان میں کوئی کشش نہیں ہے کوئی خوشی نہیں ہے غم کے علاوہ.
वज़ीर आला सिंध से अपील कर रहे हैं और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा इन फैमिलियों को पर 52 फैमिलियाँ हैं, 52 अफराद हैं और बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं और सारे अपने ही लोग हैं और इनकी मदद हमारा फ़र्ज़ बनता है। और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक कामयाब हुई है ये आपको हम लाइव मंज़र दिखा रहे हैं। हमारे सीनियर वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मंज़र देखते हैं? जी, परेशानी का आलम है और इतनी परेशान हैं कि इनके पास रहने की जगह नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ जो पीछे इनकी ज़मीनें थीं, जो आबादी थी या घर थे, घर गिर गए, तो अब कहाँ जाएं। तो फिर इन्होंने रुख किया कि जी कराची शहर है और वहाँ पे वज़ीर आला सिंध साहब ने ऐलान भी किया है कि जो गरीब हैं उनको स्कूलों में ठहराया जाए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा और ये सहूलतें। तो ये सुन के और लोग आए हैं और ये आपके सामने हैं, ये 10-12 फैमिलियाँ हैं। कोई मेहर से आया है, कोई बाडरा से आया है, तो कोई शिकारपुर से आया है, तो कोई और कहीं से आया। तो ये बहुत सारी फैमिलियाँ और रास्ते में भी हैं जो लोग आ रहे हैं अभी। और जैसे इंशाल्लाह ये आते जाएंगे हम इनको वेलकम करेंगे, इनकी खिदमत करेंगे जो भी हो सकेगा और गवर्नमेंट से अपील भी करेंगे कि इनकी जितनी भी हो सकती है उसमें खाने का हो, पीने का है और एक मेडिकल का है और रहायश का पूरा ख्याल रखा जाए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है और गवर्नमेंट से अपील भी करते हैं। तो जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए जिए पाकिस्तान। इलाके का नाम बताइएगा। ये इलाका हमारा जो यूसी 38 से साबका और अभी यूसी 6 मंगोपीर टाउन है और ये अब्दुर्रहीम गोड प्राइमरी स्कूल है जिसमें हम बैठे हैं। और अब्दुर्रहीम गोड में डिग्री कॉलेज भी है, उसमें भी लोग अगर ज़्यादा हो गए तो वहाँ भी फैमिलियाँ आएंगी तो वहाँ बिठाएंगे इंशाल्लाह। और यही सिलसिला था, पहले 2010 में भी ऐसा हुआ था, फिर अभी ये 2022 है और इसमें लेकिन 2010 की कहानी थी कि कुछ लोग भीगे थे, मतलब वो जो सैलाब था, ये कुदरती आफात है, जो बारिश है, कोई जगह नहीं बची, कोई इलाका नहीं बचा और कोई भी आप ये कह सकते हो कि घर नहीं बचा जो नुकसान ना हो। और उसमें सिंध में कुछ इलाके थे जो पहले 2010 में तबाह हुए थे या बर्बादी हुई थी, लेकिन अब ये पूरा सिंध जो है तबाह हो गया है, घर उनके गिर गए हैं, किसी का कोना नहीं बचा। बारिश इतनी है कि 8-8 दिन पूरा 15-15 दिन पूरी चलती रही है, तो घर गिरे हैं। तो उस मजबूरी में ये निकले हैं, वरना शौक़ से कोई घर नहीं छोड़ता। तो बराए मेहरबानी इनकी मदद की जाए। एनजीओज़ वगैरह हैं वो भी मदद कर सकते हैं, और भी जो हजरात ऐसे हैं जो कि कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो वो भी करें। और गवर्नमेंट से भी हम अपील करेंगे कि हमारी मदद की जाए, इन दोस्तों की, भाइयों की, हमारी बहनों की, हमारे बच्चों की मदद की जाए। शुक्रिया। अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान न्यूज़ का और तमाम मीडिया का। मेरे प्यारे भाई पलियो सारन साहब ने सारी तफसील आपको बताई। बहुत दुख होता है, बिलखसूस बलूचिस्तान की आवाम हो, इंटीरियर पंजाब की आवाम हो और सिंध तो 50% से ज़्यादा आपके सामने 2022 में इस टाइम बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। लोगों का माल, मवेशी, कपड़े, हर चीज़। तो मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का, जिन्होंने ऐलान किया, सीएम सिंध साहब ने ऐलान किया। और बिलखसूस मैं अपील करता हूँ साईं मुराद अली शाह साहब से, बल्दियात मिनिस्टर साईं नासिर हुसैन शाह साहब से, और हमारे हलके की जो MNA हैं मैडम शाहिदा रहमानी, MPA लियाकत अली अस्कानी साहब, वेस्ट के सदर, और DC वेस्ट के खुदारा जो यहाँ पर आवाम पहुँची है मदद के लिए, जिनकी खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे और इनके दुखों में बराबर के शरीक हैं। हम आपसे ये अपील करते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कैंप, खाने पीने की अक्षाएँ और बिलखसूस पानी और सफाई सुथराई के हवाले से जो हमारे डिग्री कॉलेज हैं जहाँ पर ये कैंप कायम किया गया है, यहाँ पर ये सहूलतें प्रोवाइड की जाएँ। और ये मैं सिंध गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जीवे अवाम, जीवे जीवे। अच्छा अली भाई, कितनी फैमिली है, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं अभी तक जो हमारे स्कूल में मौजूद हैं? इमरान भाई, इस टाइम 12 फैमिलियां हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं UC 6 अब्दुल रहीम गोड के इस स्कूल के अंदर। मज़ीद जो है इनकी तादाद 52 लोगों की है, जिसमें बच्चे, लेडीज़, मेरी माएँ बहनें और बूढ़े शख्स, ये लोग हैं। 52 लोगों की तादाद है। और मज़ीद लोग जो इंटीरियर सिंध से सोराब गोड पे या हमारे मेमार वाली जगह पर या कैंट पर या जो आवाम आ रही है, उनके हवाले से भी हमने
कोशिश की और सबको बैनर लगवाएं कि जो लोग यहाँ आ सकते हैं वो यहाँ आएँ और हम उनकी खिदमत करेंगे और सिंध गवर्नमेंट उनकी खिदमत करेगी। यहाँ पर अभी तादाद 52 लोगों की है और ये शाम तक कल तक जैसे लोग आ रहे हैं ये बढ़ती जाएगी। तो मैं बिलखसूस अपील करूँगा हमारे DC वेस्ट को भी कि वो ये बराए मेहरबानी यहाँ पर तमाम जितनी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करें। जी CM साहब हमारी मदद करिए, हम दुख के गांव में पूरे घर गिर गए हैं, खेती बाड़ी सारी चले गई है। बेटा घर कैसा था आपका वहाँ पे? घर जानवर थे आपके? जानवर डूब के मर गए पूरा घर तबाह हो गया? पूरा। CM साहब आपसे अपील कर रहे हैं, ये सारे वो बच्चे आप ही के हैं और आप ही के शहर, आप ही के सिंध के हैं और पाकिस्तान के ये बच्चे हैं और ये यकीन कीजिए सब दुआ मांग रहे हैं। CM साहब की तरफ नज़र है। सिकंदर बलोच है और हम यहाँ इसी अब्दुर्रहीम गोड में ही रहते हैं। सुबह में जैसे इतला मिला, पता चला तो हम यहाँ इसको अपना प्राइमरी स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन जो है 10 फैमिलियाँ भी आ चुकी हैं। बाकी जो है और लोगों का भी सिलसिला आने का शुरू है। तो ये हमारा प्राइमरी स्कूल है, बराबर में हाई स्कूल है और डिग्री कॉलेज भी है। जैसे जैसे अगर आवाम बढ़ती जाएगी तो इंशाल्लाह हम उनको वहीं बिठाएंगे। पाकिस्तान न्यूज़ आपको लाइव मंजर दिखा रहा है और ये वो बच्चे हैं जो सैलाब और बारिश से मुतासिर हुए हैं। अंदरूनी सिंध से कराची के स्कूल में ठहरे हैं। 52 लोग हैं, फैमिलियाँ 12 हैं और भी लोग आ रहे हैं और हम आपको लाइव मंजर दिखाएंगे। NIC भी इनका मौजूद है और ये मंजर है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर सारे वर्कर मौजूद हैं, उसमें हम सब साथ आपके ऑफिस में। और यकीन कीजिए इस गम की घड़ी के लिए स्पेशली दुआ हो रही है और इंशाल्लाह हर स्पेशली आज इज्तिमाई दुआ हो रही है सबके।